well-known aviation expert in our studio as well. Ankur, you can see how enthusiastically is the Prime Minister really listening to not just the Airbus officials, but also representatives of Indian companies who are there, who've been working in collaboration with Airbus. But clearly, the extent of collaboration, cooperation can be taken to another level as far as India is concerned. And is that something that the Prime Minister would be looking at very keenly here? Perhaps wondering if this can be there in Toulouse, why can't it be there somewhere in India, perhaps in Bangalore or somewhere close by? You know, the fact is, of course, I mean, Airbus is a world-class facility, and they've sort of set it up in Toulouse. And of course, in Toulouse, they've actually also concentrated other aircraft manufacturing facilities because of the traction which Airbus facility had. The issue is that I don't think the possibility could be a possibility in the future, and of course it's needed as well that we could set up a whole aircraft manufacturing base. Because right now we're in essentially India. A market. We are a market, and we are not a very large market essentially for these aircrafts as well. You know, we aren't you know, a super giant market as in China right now, because obviously we're sort of still in nascency in our aviation program or in an aviation but that requirement just, right now. gives a whole new scope for growth. It does. So there are two issues here. One is that, of course, the same facility where they're visiting right now is also the ATR facility as well, which manufactures turboprops. I think those aircrafts are much more required right now in our kind of a scenario to connect. Distance hauls. Absolutely. So the issue right now is that if you were to connect from state capitals right now, they're not connected. I mean, intrastate is not connected. So I think those connectivity is what is going to bring in the next 100 million passengers in the aviation industry. So what is required? I think what is required today is an indigenous, you know, turboprop aircraft with maybe 50 to 100 seats, which can actually do. And that's something where Airbus can actually transfer technology or absolutely. even invest. Absolutely. I think that is what is required. I mean, we need 500, 600, 700 of those aircrafts here. Okay. And apart from that, the area of defense as well, that is also something that could be looked at. We've already heard a lot of talk about how there could be JVs between Indian companies and companies like Airbus. Yeah, so I think that is another larger thing which you can do. So starting from you know, the parts which are the rotables, from the fuselage, from the frame and all. It's been happening, but very small, very small as well. There's a huge potential for those manufacturing of those parts here, and I think that can increase to a very large extent. The new aircrafts also have software systems. A lot of those do get developed in India as well. But I think there's a huge potential of actually doing that, because obviously it's not a huge. You know, we have the software brains to actually start running these systems here. So I think these two things, there is a huge potential for it to move forward. Also for the rotables, because of these aircrafts, the rotables need to get. Rotables means that the parts have to come out of the aircraft and then get back into it after they are sort of refurbished. That is a huge potential as well to do that in India, because obviously, you know, I mean, we are strategically located across Middle East and Southeast Asia, so I think that potential remains. And even maintenance as well as overhaul and repairs, I don't think, you know, that is a very basic I mean, these requirement. The rotables, brakes, landing gears and all, I think that can be done easily as long as there's a base and there's an investment made by the manufacturers to run those facilities off here. But with the newer policies, the government, of course, I mean, they would also want that the government is stressing on ease of business, and perhaps that is something that the industry itself can suggest to the government, the measures that are required if tax breaks are required. Yeah, I think that is an important subject, what you just mentioned, because of the way that our taxation structures are, and especially state taxation structures, it becomes fairly non-viable for you know, MRO facilities to be set up specifically for others. So it's sometimes Do you think cheaper to GST is something that will help with that? It could as well, but then there are import duties, there are other duties which are connected. So GST will help in the local transfer, but there are other duties and other things which are available, which makes it a bit you know, tougher to actually do it here. It's easier to actually for Prime Minister Modi to consider while he's there at Toulouse. He has almost reached the end of his visit to the Airbus facility. There he'll be moving on to the French Space Agency in just a bit. We'll keep you updated on all that's going on with live updates with our correspondents there in Toulouse. We're taking a very short break at this point. Do stay tuned for all the latest to DD News. नमस्कार, दोपहर समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अश्विनी मिश्रा और बुलेटिन में सबसे पहले बात प्रधानमंत्री की 3 देशों की यात्रा से जुड़ी हुई खबरों की।
फ्रांस दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तुलूज पहुंचे। तुलूज शहर यूरोप में एविएशन सेक्टर और स्पेस सेंटर के रूप में जाना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां की मशहूर एविएशन कंपनी एयरबस का बारीकी से मुआयना किया। और प्रधानमंत्री के इस दौरे के बारे में और तुलूज शहर में आज उनके एयरबस के मुख्यालय पर जाने के बारे में क्या कुछ संकेत हैं और साथ ही साथ क्या कुछ इसके मायने हैं, इस बारे में हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान मौजूद हैं। अंकुर भाटिया जी जो कि विमानन विशेषज्ञ हैं। अंकुर जी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि कम मेक इन इंडिया, और जिस तरीके से आज जो बॉडी लैंग्वेज थी, उन्होंने बारीकी से एक एक जगहों का उन्होंने निरीक्षण किया, तो क्या कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संकेत जाते हैं और साथ ही साथ क्या कुछ संभावनाएं आप देखते हैं एविएशन सेक्टर की, क्या कुछ चुनौती? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो एक पोटेंशियल है इंडिया में आज की डेट में, क्योंकि जो लोग सिविल एविएशन में जो लोग नंबर्स हैं बहुत कम है हमारे देश में अभी, तो 71 मिलियन पैसेंजर्स हैं, जबकि जो पोटेंशियल है वो 300 मिलियन पैसेंजर्स का है फ्लाई करने के लिए। तो एक तरह से इंडिया एक ऐसी पोटेंशियल जगह है जहां पर इंक्रीमेंटल बिजनेस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू एनी अदर कंट्री अक्रॉस द ग्लोब। तो यहां पर एक ये जो इस वजह से ये जो उनका अभी विजिट हुआ है एयरबस फैसिलिटी में, जहां पर और भी विमान बनाए जाते हैं, काफी एक महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि यहां पर जैसे मैं पहले बताया कि एक शॉर्ट हॉल सेक्टर्स जो स्टेट कैपिटल्स को कनेक्ट करने वाले हैं, टर्बो प्रॉप ऑपरेशन टाइप के बहुत एयरक्राफ्ट की जरूरत है हिंदुस्तान में। जी अंकुर जी, जिस तरीके से देखें, दो क्षेत्र हैं। एक तो बहुत बड़ा बाजार है क्योंकि आबादी बहुत ज्यादा है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, लोगों की एक्सपेंडिचर जो कैपेसिटी है वो बढ़ रही है। रेल की जगह लोग जहाज से जाना चाह रहे हैं, वो तो यातायात की स्थिति है। स्थिति 60 साल में अगर देखें आजादी के बाद से, HAL हमारे कुछ चुनिंदा 5-6 हैं जहां पर हम उत्पादन की कोशिश करते हैं, तब भी अभी हमें कोई बड़ी छलांग नहीं लगा पाए। नहीं, क्योंकि इस वजह से, क्योंकि हमारी एक डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट और प्रोडक्शन इतनी ज्यादा नहीं है कि यहाँ पर बड़ी फैसिलिटी बना सके एयरक्राफ्ट्स की। बट जिस तरह से मैंने बताया कि आप जैसे कह रहे थे कि पोटेंशियल बढ़ रहा है और फ्यूचर में बहुत ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि जो 300 मिलियन मिडिल क्लास है हमारी, वो अफोर्ड कर सकती है फ्लाइंग। तो उसको मद्देनजर देखते हुए अगर कोलैबोरेशन हो सकती है देशों के साथ जिनके पास टेक्नोलॉजी है कि यहां पर मैन्युफैक्चरिंग हो सके, और स्पेसिफिकली फॉर जो एयरक्राफ्ट की जो रिक्वायरमेंट है यहां पर, तो आई थिंक ये एक लॉन्ग टर्म प्ले रहेगा हिंदुस्तान के लिए कि यातायात चीप रहेगा और एफिशिएंट रहेगा, और काफी हद तक इंडिया डोमेस्टिक ट्रेड भी बढ़ेगा। अगर देखें एयरबस और बोइंग, ये दो बड़े कहीं ना कहीं विमानन क्षेत्र की कंपनियां हैं। अमेरिका के जो भारत के संबंध है वो दिनों दिन बेहतर हो रहे हैं, लेकिन इससे पहले भी स्थिति ये थी कि कहीं ना कहीं हिचक रहती थी जो प्रौद्योगिकी है उसके हस्तांतरण में। उसके कंपैरिजन में अगर देखें तो एयरबस प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के मामले में फ्रांस कहीं ना कहीं उदार दिखता है। चीन में इन्होंने ज्वाइंट वेंचर शुरू किया, दूसरे देशों में कर रहे हैं। तो ऐसे में जब वही सवाल कि कम मेक इन इंडिया जब होता है, तो क्या उम्मीद देखते हैं कि बाजार को देखते हुए, ग्रोथ देखते हुए इकोनॉमी की कितनी संभावना दिखती है भारत में आकर विकास करने की? देखिए, अगर उनको भारत को कॉन्कर करना है, और कॉन्कर क्या कहें, अगर मार्केट को कॉन्कर करना है यहाँ पर, तो आकर बनाना ही पड़ेगा यहाँ पर। और ये जरूरी नहीं है कि आकर वो पूरा नया एक असेंबली लाइन शुरू करे, बट एक यूनिट लगा सकते हैं, असेंबली यूनिट लगा सकते हैं। काफी एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स ने चाइना में ऐसा कुछ किया हुआ है। और जो सेक्टर है यहाँ पर जहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, जो मैंने आपको बताया कि शॉर्ट हॉल सेक्टर है, उसके दो मेन प्रोडक्शन यूनिट्स हैं। एक तो है जैसे बताया आपने फ्रांस में ATR के साथ, और दूसरा कनाडा भी जा रहे हैं अभी प्रधानमंत्री, वहां पर बम्बार्डियर करके कंपनी है जहां पर जो वो जहाज बनाती है। तो उन दोनों में से जो लोग देख सकें कि यहाँ का पोटेंशियल में आकर बनाए, और ऑफ कोर्स बोइंग के पास भी कैपेबिलिटी है ये करने की। अब यहां देखना है कि सारे लोग देखते हैं कि क्षमता है, पोटेंशियल है, तो जो पहला कदम उठाए, ऑफ कोर्स ऐसी मार्केट नहीं है कि सबके लिए होगी अगर मैन्युफैक्चरिंग हो यहां पर। हाँ, यहां तक सप्लाईज हैं, ऑफ कोर्स सारे लोग सोचेंगे कि कहेंगे कि ऑफ कोर्स सप्लाई करना चाहते हैं वो इंडिया को। जी, एक जैसे अगर देखें कुछ आंकड़े हैं कि केवल एविएशन सेक्टर का देखें 0.5% ही GDP में कहीं ना कहीं बहुत कम है, बेहद कम है, 1% से भी कम है।
12th प्लान में हमने 12.1 बिलियन इन्वेस्टमेंट किया। जी। उसके अलावा जो अगला प्लान है 5 वर्ष का, उसमें सरकार का लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा हम एफडीआई हासिल करें। वो कैप भी हटाया गया और इसमें बढ़ाया गया। ऐसे में क्या कुछ उम्मीदें देखते हैं मध्य वर्ग की आकांक्षा को देखते हुए? देखिए, अगले 5 साल में डेफिनेटिवली इंक्रीज तो रहेगा। अभी नई एयरलाइंस शुरू हुई हैं, विस्तारा शुरू हुई है, एयर एशिया हुई है, काफी और नई एयरलाइंस आ रही हैं जो रीजनल कनेक्टिविटी पे कॉन्सेंट्रेट कर रही हैं, और काफी और हद तक नई एयरलाइंस आएंगी। तो उनको जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा, उनको जो जहाज चाहिए होंगे, उनको जो फैसिलिटीज चाहिए होंगी, उसमें काफी इन्वेस्टमेंट्स आएंगी। तो ये सारा ही अगर एक कॉन्सेंट्रेट कर जैसे आप शुरू में हिंदुस्तान में गाड़ियां नहीं बनती थी, फिएट और एम्बेसडर बनती थी। सडनली मारुति ने, सुजुकी ने एक जॉइंट वेंचर किया हिंदुस्तान में आकर, और काफी हद तक अभी भी वो एक सबसे हाई मार्केट पोजीशन में है। तो सेम सिचुएशन है एविएशन के लिए भी। यहाँ पर जो आ जाए मैन्युफैक्चरर यहाँ पर आज की रेट में और आकर अपना सेटअप कर ले, उनके पास ये मार्केट काफी सालों तक रहेगा। जबरदस्त तरीके से जो संभावना है उसको। बिल्कुल। अगर यातायात की बात करें तो जिस तरीके से पिछले वर्षों में तेजी से हवाई जहाज से यात्रा करने वाले लोगों की तादाद बढ़ी है, 2020 तक आंकड़े बताते हैं कि हमारा जबरदस्त ये ग्रोथ होगा और 2020 तक हम एक बड़ी मार्केट के रूप में आएंगे। ऐसे में छोटे छोटे जब स्मार्ट सिटी की बात करते हैं प्रधानमंत्री, तो उनकी कनेक्टिविटी को भी बड़े जहाज न चले या टैक्सी जैसी ही चीजें अगर चलती हैं, तो उन सबका भी विस्तार इस तरह के प्रयासों में दिखता है। देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अभी आज जो एयरबस A320s हैं, सारे लोग वही फ्लाई कर रहे हैं, और उनका एक काफी हद तक मोर और लेस सिटीज उन्होंने कवर कर ली हैं। उनका पोटेंशियल धीरे धीरे, ये नहीं है कि वो 10-20% से ग्रोथ हो सकता है, बट जो अगर आप 100% ग्रोथ चाहते हैं सेक्टर में, तो वो फिर ग्रोथ होगी। जैसे स्मार्ट सिटीज अगर बना है, छोटे शहरों से कनेक्टिविटी, छोटे शहरों के बीच में, और बड़े शहरों से छोटे शहरों में की जो कनेक्टिविटी आज की रेट पे इतनी ज्यादा नहीं है, रोड से या ट्रेन से ट्रैवल करना पड़ता है, उसमें होगी। अगर देखें जिस तरीके की प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें, या फिर जिस तरह से चीन जो है उसकी स्थिति देखें, जिस तरीके से यूरोप के देखे बाजार, उन बाजार में भारत एक बड़े बाजार की तरह देखा जाता है। और चाहे विडंबना कहें या चाहे उसको खासियत कहें कि हम अभी तक बाजार ही बन पाए हैं। प्रधानमंत्री की कोशिश ये होती है कि यहां पर जब इकाइयां लगेंगी, जब वेंचर लगेंगे, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी। तो ऐसे में जब पूरा का पूरा जो रोड मैप है विकास का, वो कितना प्रभावित होगा, रोजगार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एविएशन में कितना और ज्यादा इजाफा होगा? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो मैन्युफैक्चरिंग, जो आपने पहले बताया कि अगर मैन्युफैक्चरिंग करें तो उसकी वजह से तो ऑफकोर्स एक जॉब तो मिलेगी ही मैन्युफैक्चरिंग में, बट एविएशन इंडस्ट्री को जैसे आप देखते हैं तो एक जॉब एविएशन इंडस्ट्री की इक्वलेंट 8 जॉब्स और पैरेलल सेक्टर्स में देती है। जैसे कि हैंडलिंग हो गई, या केटरिंग हो गई, या फ्यूलिंग हो गई, या सेल्स हो गई, मार्केटिंग हो गई। तो इससे ज्यादा टूरिज्म और एविएशन से ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल फिलहाल के लिए मुझे लगता नहीं है कि किसी और सेक्टर में हमारी कंट्री में अभी है। जी, तो जिस तरीके से स्थितियां हैं अगर आप देखें तो आंकड़ों की ही मैं बात कर रहा था इससे पहले कि मार्च 2014 तक, साल 2000 अप्रैल 2000 से लेकर मार्च 2014 तक अगर एविएशन का एफडीआई देखें तो ये एफडीआई इनफ्लो हुआ है तकरीबन $495 मिलियन। जी। और ये लक्ष्य है कि 2020 तक हम इसको बढ़ाकर और बेहतर करें। जी। मौजूदा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बाजार की अगर बात छोड़ें तो जो हमारे हवाई अड्डे हैं, जो हमारी सुविधाएं हैं, वो कितनी तैयार हैं भविष्य की चुनौतियों को देखते? देखिए, ये एक बात है कि जो पिछली गवर्नमेंट थी, उन्होंने काफी हद तक एक इन्वेस्टमेंट प्लान में अपना जो सेकेंडरी हवाई अड्डे थे, वो काफी हद तक इन्वेस्टमेंट्स उनमें हुई हैं। टर्मिनल्स जो थे छोटे छोटे एयरपोर्ट्स पर भी, वो भी इक्विप हुए हैं कि वो मल्टीपल फ्लाइट्स हैंडल कर सकें। बट अभी भी काफी एयरपोर्ट्स ऐसे हैं जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, अभी भी काफी एयरपोर्ट्स ऐसे हैं जहां पर अभी भी फ्लाइट्स नहीं जाती हैं, जबकि वहां पर पोटेंशियल है। तो आपने 400 मिलियन डॉलर की जो फिगर दिया, ये फिगर इजीली डबल या ट्रिपल हो सकता है आने वाले सालों में। जैसे कि बताया कि आप 70 मिलियन पैसेंजर्स आज की डेट में फ्लाई करते हैं,
मुझे लगता है हमारे आंकड़ों से कि 30 या 40 मिलियन के करीब ही इंडिविजुअल लोग होंगे जो फ्लाई करते हैं, क्योंकि बाकी तो रिपीट ट्रैवलर्स होते हैं जो जाते हैं। तो अगर आप देखें 300 मिलियन लोग फ्लाई करने का पोटेंशियल है और सिर्फ 30 मिलियन जाते हैं, तो 10% अभी आज की रेट में लोग फ्लाई कर रहे हैं उस पॉपुलेशन बेस से। अगर 1.3 बिलियन का पॉपुलेशन बेस देखें तो बहुत ही कम है ये आंकड़ा अभी की डेट में। ये ग्रो तो होगा ही 100%, देयर इज नो रीजन कि नहीं होगा ग्रो। सरकार का जो तो लक्ष्य है वो 2020 तक 2020 तक इसको 450 मिलियन तक ले जाने का है। ये कहां तक? देखिए, ये तभी हो सकता है जब रीजनल कनेक्टिविटी पे पुश, क्योंकि जो इंट्रा कनेक्टिविटी दिल्ली मुंबई जो बड़े शहरों के बीच में है वो ऑलरेडी एक हद तक उसमें जो